People must be coming to you only कि जिन्होंने शाहरुख खान को किया है उन्हीं के पास जाएंगे हम भी. They say that we found you because you made Abram. You made a bra. There's no actual test tube, but test tube baby has become a kind of, lay person's way of describing the whole thing. You had Karan Johar come to you and be like, I need help to become a father. And you helped in bringing the children to this world. It was a big social shift because a single father was a new concept in India. What do you think is the biggest myth about IVF? कॉस्ट बहुत है, पेन बहुत है, अपना बच्चा नहीं होता और किसी का होता. अगर फीमेल पार्टनर की एज 30 के ऊपर चली गई है तो देयर इज अ 46 यानी 50% ऑलमोस्ट चांस है कि वो इनफर्टाइल रहेगी. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनफर्टिलिटी इज 1 in 2. Oh my God. मुझे लगा अगर आप बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी खाना खाते हैं तो फिर आपका सिस्टम उसी तरह से हेल्दी रहेगा. आप रोज 6 घंटा जिम करो, आप बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड करो, बट आपका मेनोपॉज का एज 1 महीने से भी प्रीपोन नहीं हो सकता. कि इंडिया में अगर 10 कपल आते हैं तो 4 या 5 में मेल प्रॉब्लम है. बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज नेचुरल नहीं है. नाउ इट इज अपोजिट ट्रेंड. शाहरुख खान कर सकता है तो फिर तो नॉर्मल बात है. व्हाट इज द सक्सेस रेट? तो द रियल ट्रूथ इज 40%. जो पिक्चर बनी है गुड न्यूज, वो तो गुड न्यूज बैड न्यूज है तो हमारी बैंड बजा दी. कुछ लोग तो बहुत हेल्दी होते हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है. आईवीएफ करे तो भी वो सक्सेस नहीं होता. दैट इज द डेंजरस केस. आईवीएफ हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू डू? डोनर एग का या डोनर स्पर्म ले रहे हैं, लॉ के हिसाब से वो बच्चा किसका हुआ? Dr. Jatin, thank you so much for being on Alina Dissects and taking out time from your very busy schedule and being here. Thank you, Alina. It's indeed a pleasure to be on the show. I think we can discuss a lot about infertility, childlessness, egg freezing, and a lot of other important issues. Yes, and I think the podcast is very important also because not a lot of people openly talk about these issues. Like they're very hidden about these things, and I think the more information people have, the better decisions they will be able to make. Yes. Yeah. So my first question to you is that if you had to describe what you do, when you talk about being an IVF and fertility specialist, what all is included in that? Yeah, so basically it's a very fascinating field of medicine, one of the most satisfying. Most doctors are about saving lives, treating disease. This is one field where you are actually creating a new life in the laboratory. So it's very satisfying and very different from other fields of medicine. So it all started in 1978. I'm sure you saw the movie Joy on Netflix, which shows the origins of IVF and how actually the first baby was born. Basically what I do is, of course, we have to stimulate, we have to first evaluate the couple in detail, the infertile couple when they come, as to what is the reason for infertility. And basically what we do in vitro fertilization is we stimulate the female to get more eggs. So she takes hormonal injections for about 8 to 10 days, so that instead of one, she produces 10, 15, 20 oocytes, eggs. Then there is a short procedure under anesthesia where we pick up the eggs. Then we take the husband's sperm, fertilize all the eggs in vitro in a petri dish. There's no actual test tube, but test tube baby has become a kind of, lay person's way of describing the whole thing. So in a petri dish, we fertilize the eggs, create embryos, and then put the embryo back into the womb of the wife to give her a happy live birth. And extra embryos can be frozen. So that's in very short what basically in vitro fertilization means. Okay. बहुत सारे IVF procedures के नाम अलग अलग होते हैं, but सब उनको IVF ही बोलते हैं. For example, मैंने जब research किया तो उसमें पता चला कि एक procedure होता है IUI, एक होता है ICSI, but सारे procedures को हम IVF क्यों बोलते हैं? So IVF sort of एक generic नाम हो गया कि in vitro fertilization means जहाँ पे हम लोग gametes, जो मेल के स्पर्म रहते हैं और फीमेल के एग्स रहते हैं, इनको ह्यूमन बॉडी के बाहर अगर हैंडल करते हैं तो उसको ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, और उसका कॉमन वर्ड हो गया है IVF. बट जैसे आपने करेक्टली कहा, द फर्स्ट सिंपल ट्रीटमेंट इज IUI यानी वाइफ का सिर्फ ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करते हैं, और जब ओव्यूलेशन होता है तब हस्बैंड का सीमेन हम लोग वॉश करते हैं लेबोरेटरी में और एक सिंपल कैथेटर से फिर से यूट्रस में छोड़ देते हैं. सो दैट इज द सिंपलेस्ट, जो सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. बट सक्सेस रेट सिर्फ उसका 10 से 15% रहता है, यानी 10-11 पेशेंट करेंगे तो शायद एक प्रेग्नेंट हो जाए 1 महीने में. फिर उसके बाद कन्वेंशनल IVF आता है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, जहाँ पे हम लोग एग्स लेंगे, हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, दोनों को एक पेट्री डिश में रख देंगे. अब नेचुरली स्पर्म एग के अंदर जाएगा, यानी उसके लिए हस्बैंड का स्पर्म नॉर्मल होना बहुत जरूरी है. लेकिन पेट्री डिश में होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा. फिर उसमें एम्ब्रियो तैयार होगा और एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफर करेंगे फिर से फीमेल यूट्रस में. अब समझो स्पर्म वीक है, जैसे कि इंडिया में अगर 10 कपल आते हैं तो 4 या 5 में
मेल प्रॉब्लम है, यानी स्पर्म्स आर नॉट वेरी गुड, काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी खराब है, या कुछ भी रीजन से वो स्पर्म का पावर नहीं है, तो इक्सी नाम की ट्रीटमेंट 1992 में आई। इक्सी यानी फाइनली एक बच्चा तैयार करने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, राइट। आईवीएफ में हमको 2 मिलियन चाहिए, आईयूआई के लिए 10 मिलियन चाहिए, बट इक्सी में हम सिर्फ एक स्पर्म को उठा लेंगे एक माइक्रो नीडल में और डायरेक्ट एग को पंक्चर करके अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कितना ही कम स्पर्म काउंट क्यों ना हो, ऑल दैट आई नीड इज एक जिंदा स्पर्म चाहिए मुझे, बस। एक स्पर्म मिल गया तो एक एग में इंजेक्ट करेंगे। फीमेल के तो 5, 10, 15 एग निकलते हैं, तो उतने ही स्पर्म चाहिए और करोड़ों की संख्या में नहीं चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट जादुई ट्रीटमेंट की तरह आई 1992 में के, जहाँ पे किसी को भी अभी विकी डोनर की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी सीमेन बैंक ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट जैसा हो गया अगर स्पर्म है तो। अभी कैसे कुछ कुछ पेशेंट है जिनमें 0 स्पर्म काउंट्स है, यानी बिल्कुल स्पर्म नहीं है, वहां पे भी हम लोग कभी कभी टेस्टिस से डायरेक्ट बायोप्सी करके स्पर्म निकाल सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो 40-50% में वहां पे स्पर्म मिल जाते हैं, तो वो भी इक्सी द्वारा अपना खुद का बच्चा कर सकते हैं बिना डोनर लिए। फिर उसके बाद समझो कोई 45 ईयर ओल्ड लेडी है और उसके मेनोपॉज हो गई और एग्स नहीं है, या शायद कोई 35 साल की है और 2-3 आईवीएफ फेल हो चुके हैं और उसके एग्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो उनको एग डोनेशन लेना पड़ता है। तो वो और कोई यंग लेडी से एग लेंगे, सो दैट बिकम्स एग डोनेशन विद आईवीएफ। वैसे ही अगर स्पर्म खराब है तो स्पर्म डोनेशन विद आईवीएफ। फिर अगर दोनों खराब है तो एम्ब्रियो डोनेशन बोलते हैं उसको, यानी एग भी डोनर से लेना है, स्पर्म भी डोनर से लेना है। और फाइनली समझो यूट्रस ही खराब है, तो हस्बैंड वाइफ का गैमीट्स लेना है, एग और स्पर्म, एम्ब्रियो तैयार करके मैं थर्ड मदर में रखूं, सरोगेट मदर में, तो उसको सरोगेसी कहते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स के नाम जो है वो आईवीएफ की छत्र छाया में आ जाते हैं। बट बेसिकली हर कपल को अलग रिक्वायरमेंट रहता है और वो पूरा इवेल्युएशन करके वी हैव टू डिसाइड कि कौन से कपल को कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। थोड़ा पीछे जाना है मुझे ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है। नंबर 1 इज डिलेड चाइल्ड बेयरिंग। तो सबसे जो बड़ा रीजन है इज आवर कल्चर्स ओवर द इयर्स हैव चेंज्ड। पहले आपको याद है कि 16-17 में शादी हो जाती थी, 18 से प्रेगनेंसीज चालू और 28 तक 1, 2 नहीं 4, 5, 7 बच्चे हो जाते थे जब हमारे फोर फादर्स थे तब। फिर हमारे जनरेशन में थोड़ा लेट हुआ, जैसे मेरी शादी 22-23 में हुई, which was also considered late in those days। फिर अब हुआ नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद एक बीच में जनरेशन आया कि 28-29 पे शादी होने लगी और आजकल तो 30+ ही हो रहा है, राइट। सो नाउ फीमेल का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्योंकि फीमेल्स आर बॉर्न विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। अब ये नेचर ने फर्क बनाया है कि फीमेल्स फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेके जन्म लेती है, मेन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हर सेकंड प्रोड्यूस कर सकते हैं टिल देयर लास्ट लिविंग डे। तो ये डिफरेंस की वजह से फीमेल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक रन आउट होने लगता है। सो एस्टिमेट्स आर के सब बेस्ट एग्स जो है वो 30-32 तक निकल जाते हैं। उसके बाद मीडियम क्वालिटी के रहते हैं 36-38 तक, और उसके बाद पुअर क्वालिटी के रहते हैं टिल मेनोपॉज। अब अगर कोई 35 पे ही शादी करेगा और 38 पे आएगा तो ऑब्वियसली एग्स की क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी जो 17-18 को मिलेगी। सो दिस इज द नंबर 1 रीजन। और इसकी सिंपल एक प्रूफ जो है वो, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया 33 साल पहले, तो WHO फिगर्स वर के 16 में एक कपल इनफर्टाइल है, 1 in 16। फिर अभी 10 साल पहले WHO के नए स्टेटिस्टिक्स आए पूरे वर्ल्ड के लिए कि 1 in 16 का अब हो गया है 1 in 6। फिर इंडिया में एक स्टडी हुई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, सब जगह एक बड़ी स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया ने की। 8,000 या 10,000 रिस्पोंडेंट्स थे और उसमें पता चला कि अगर फीमेल पार्टनर की एज 30 के ऊपर चली गई है तो देर इज अ 46 यानी 50% ऑलमोस्ट चांस है कि वो इनफर्टाइल रहेगी, यानी उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द कट ऑफ। ये जो 30 का जो कट ऑफ है वो बहुत ही डेंजरस कट ऑफ है। अब 50% का मतलब क्या हुआ कि अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनफर्टिलिटी इज 1 in 2, यानी एवरी ऑल्टरनेट कपल को थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी या ज्यादा या आईवीएफ या कुछ भी हो, बट दे विल नीड फर्टिलिटी हेल्प। एंड दिस इज प्योरली द मेन रीजन इज लेट मैरिज, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग, नंबर 1 रीजन। बाकी सब तो ऑफकोर्स लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, बाहर का खाना, स्मोकिंग, वेपिंग, ई सिगरेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स तो है ही है, बट वो थोड़े हाइप भी ज्यादा हो जाते हैं कि चलो उसी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। देयर आर पीपल विद वेरी क्लीन लाइफस्टाइल्स आल्सो, बट दे हैव वेरी बैड स्पर्म्स, बैड एग्स। यानी लाइफस्टाइल इन चीजों को चेंज नहीं कर सकता। मुझे लगा अगर आप बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, तो फिर आपका सिस्टम उसी तरह से हेल्दी रहेगा। नहीं, जैसे जो एग्स जो कम है वो कम है। सो वॉट एवर यू डू, आप रोज 6 घंटा जिम करो, आप बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड करो, बट आपका मेनोपॉज का एज 1 महीने से भी प्रीपोन नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाट नेचर हैज डिसाइडेड। सो नेचर का जो है फिक्स्ड कि दिस इज द एग, क्योंकि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है लेडीज का, समझो 10 या 11 साल की उम्र से, तब से बेस्ट एग्स रिलीज होने लगते हैं हर महीने।
सो यू कैन इमेजिन के 35 तक सब सारे बेस्ट एग्स तो सब चले गए. सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस. प्लस ऑफ कोर्स अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस थोड़ा कॉमन है हमारे कंट्री में, तो ब्लॉक ट्यूब्स होती है उसकी वजह से. फिर स्पर्म काउंट मैंने बताया 40-50% में मेल फैक्टर है कि स्पर्म्स आर नॉट टू गुड. फिर लेट मैरिज की वजह से 2 डिजीज और प्रोमिनेंट हो जाती है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी आपने सुना होगा, पीसीओ, और दूसरी एंडोमेट्रियोसिस. जैसे 30 साल पहले व्हेन एवरीबडी वाज, जो बच्चे जल्दी जल्दी करते थे, तो इतना एंडोमेट्रियोसिस नाम का डिजीज नहीं सुनने में आता था. पीसीओएस और पीसीओडी भी पहले सुनने में नहीं आता, जो हाँ, अब तो every अब other बिकॉज girl पीसीओएस has. जो है वो इरेग्युलर पीरियड्स, थोड़ा प्लम्प होना, ओबेसिटी होना, एक्ने होना, हेयर लॉस होना, तो एनी इरेग्युलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस, ये जो पूरा सिंड्रोम है ये जेनेटिक रहता है, बट इट मैनिफेस्ट आफ्टर 28. तो 28 के बाद उसकी सिवियरिटी स्टार्ट होती है. अब अगर किसी ने 23 में शादी कर ली पीसीओ ने, तो शायद पॉसिबल है कि 28 के पहले उसके 1-2 बच्चे हो जाएंगे विदाउट हेल्प. Okay. बट इफ शी क्रॉसेस 30, 32, 34, और जितना वजन बढ़ते जाएगा उसका विद टाइम, तो उतना ही मोर डिफिकल्ट उसको आएगा जो प्रेगनेंसी करना है, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ते जाएगा. सो ऑल दिस इज बेसिकली एज रिलेटेड. Age सेम विद एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस बीमारी क्यों होती है? क्योंकि नेचर ने क्या डिजाइन किया था कि फीमेल का मेंस्ट्रुएशन शुड गेट इंटरप्टेड. कि हाँ. चलो 11 पे मेंस्ट्रुएशन हुआ तो 19-20 पे प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी में 9 महीना मेंसेस बंद हो जाता है. उसके बाद 6 महीना ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो मेंसेस नहीं आएगा, तो 15 महीना का रेस्ट मिल गया फीमेल सिस्टम को. Okay. अब अगर वो नहीं होगा और फीमेल रीचेस 30-32, तो ये एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी स्टार्ट हो जाती है. Oh. सो ऑल दीज डिजीजेस यू हियर, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, Fibroids. पीसीओएस, ये सब उनमें कॉमन है लेडीज में जिनको अभी तक प्रेगनेंसी हुई नहीं है. Oh. Yeah. So they are age related and in women who have not yet conceived. So pregnancy protects the body against a lot of disease. Not only endometriosis, fibroids, but even a lot of cancers. Right. But abhi, the lifestyle has become such, trend has become such, everybody Trend. wants to study, educate, which I agree with them. हाँ. career करना है, financially stable होना है. Just because मेरा pelvic clock is ticking, मैं जल्दी जल्दी शादी कर दूं किसी से, तो ये सब नहीं. Don't believe in biological clock, but मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं, nature has biological made clock it. is the most important, most अगर हम important. भी कोई गायना के पास जाते हैं फॉर रेगुलर चेकअप 7 at 20 to 23, वो बोलेंगे कि आपका बेस्ट टाइम यही है. बट देन एज वुमेन वी फील लाइक हम ही इतने इवॉल्व नहीं हुए, वो एज तक हमें ही इतनी समझ नहीं आई है, तो हम कैसे वो एज में करें? नहीं, I आप agree. उसका क्या No, बोलोगे? I totally agree. और हर चीज जब ऐसी सोशल ट्रेंड चेंज होती है, साइंस ट्रेंड चेंज होती है, साइंस कम्स अप विद अ सोल्यूशन. तो अब उसका सोल्यूशन है कि ठीक है, जल्दी अगर शादी नहीं करनी है, जल्दी बच्चे नहीं करने हैं, तो एग फ्रीजिंग कर दो. सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज द नेक्स्ट बिग बूम ऑफ द सेंचुरी. कि एवरी फीमेल नाउ वांट्स टू प्रिजर्व हर एग्स, ताकि उसको प्रेशर ना हो कि नहीं जल्दी शादी करना है, जल्दी बच्चा करना है. शी कैन एजुकेट herself, हैव अ गुड करियर, सेटल डाउन व्हेनेवर शी वांट्स, व्हेनेवर शी थिंक्स कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छा पार्टनर मिल गया है, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं रेडी हूँ माँ बनने के लिए. वैसा ही होना चाहिए. बट फिर वो एग्स तो फिर आएंगे नहीं वापस. लेकिन अगर 28-29 के एज में एग फ्रीजिंग कर दिया है, तो देन शी इज सिक्योर कि नाउ आई कैन प्लान माई लाइफ. सो एम्पावरमेंट बहुत है. फीमेल एम्पावरमेंट विल कम ओनली विथ सोशल एग फ्रीजिंग. इलेक्टिव एग फ्रीजिंग जितना ज्यादा होगा उतना एम्पावरमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज देन द फीमेल्स आर नॉट अंडर प्रेशर कि मुझे जल्दी से शादी करनी है, जल्दी बच्चे करने हैं. ओके, तो आप रेकमेंड करेंगे कि कोई वेट करे, एग फ्रीजिंग करे, या टाइम पे आप शादी करके टाइम पे आप बच्चे करिए? आइडियल तो वही है कि जल्दी टाइम पे शादी करो, लेकिन वो तो कोई सुनने वाला है नहीं. और शादी करके भी जल्दी बच्चे करो, वो भी आजकल कोई सुनते हैं नहीं, राइट? तो सब 32-33 तक तो कोई प्लानिंग ही नहीं होती है. So now that is difficult. So the better of two evils is के egg freezing कर लो. बट आप बेटर बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में इफ यू लुक एट इंडिया एट लार्ज, अभी भी कल्चरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज नेचुरल नहीं है, लाइक दैट इज व्हाई वी डोंट डू. आप if you don't know much, for example, there are lots of people I have met, culturally होगा या where in small cities जहाँ पे इतना education नहीं होगा, वहाँ पे लोग सोचते हैं कि जो natural है आप अगर उससे हट के करा रहे हो, जैसे कि IVF, तो ये morally culturally wrong है. IVF या egg freezing? IVF procedure. नहीं, IVF का टैबू था 30 साल पहले, जब स्टार्ट हुआ 45. जब अगर आप वो मूवी जॉय देखेंगे तो उनके घर के बाहर लिख के गए थे कोई रात को
कि फ्रैंकेनस्टाइन लिव्स हियर, जो मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन है, जब वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ बेबी की तो डॉक्टर और साइंटिस्ट के पूरे घर के बाहर इतने प्रोटेस्टर्स आके राइट्स करके सब ग्रेफिटी लिख के गए कि ये फ्रैंकेनस्टाइन है, ये मॉन्स्टर है, ये नेचर के साथ खेल रहे हैं, बच्चे को टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो एनीथिंग न्यू कम्स, देयर विल बी ऑस्ट्रासिज्म, देयर विल बी पीपल विल रिजेक्ट एंड आर्ग्यू अबाउट इट कि ये सही नहीं है, क्या सही है. बट फाइनली इट्स अ मेडिकल साइंस. अभी कोई अगर कैंसर का पेशेंट है तो कीमोथेरेपी तो लेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं नेचर पे छोड़ दो, अब जो है वो है, चले जाए हम, राइट. सो सेम वे इनफर्टिलिटी हैज इंक्रीज, तो साइंस हैज कम विद द सॉल्यूशन. नाउ लेट मैरिज इज बिकम अ नॉर्म, तो साइंस हैज कम विद द सॉल्यूशन ऑफ एग फ्रीजिंग. तो हर चीज का सॉल्यूशन तो साइंस लाएगा ही लाएगा. अब सिंपल टैबू की क्या चेंज है. अभी इंडिया में ही 30 साल पहले मैं जब आईवीएफ करता था तो हमारे क्लिनिक में एक डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पे हैप्पी कपल्स जो प्रेग्नेंट हो गए उनके बच्चों के साथ फोटोज जस्ट टू इंस्पायर न्यू कपल्स. तो उस टाइम अगर मैं फोटो खिंचवाता था किसी के साथ तो वो मुझे 10 में से 8 बोलते थे, डॉक्टर ये फोटो प्राइवेट रखना, इसको बाहर मत रखना, हमको किसी को बताना नहीं है कि आईवीएफ किया है. आज की तारीख में अगर मैंने फोटो खींचा और नहीं डाला तो पेशेंट मुझे बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा फोटो क्यों नहीं है, मैंने हमारे रिलेटिव को भेजा, वो बोला आपका फोटो नहीं देगा उधर. सो नाउ इट इज ऑपोजिट ट्रेंड. सो पीपल आर ओके विथ एक्सेप्टिंग इट, दे आर नॉट फीलिंग एनी गिल्ट अबाउट इट और टैबू अबाउट इट, और प्राउडली वो सबको कह रहे हैं कि हाँ हमने आईवीएफ किया, सब ठीक है, बहुत अच्छी है. बिकॉज सी आईवीएफ अपना ही बच्चा है ना. लोगों के मन में क्या मिथ था कि आईवीएफ यानी ये डॉक्टर और किसी का डाल देगा, कुछ कर देगा, किसी और का है, किसी और का स्पर्म. तो मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया सब अलग अलग कैटेगरीज है. अब समझो किसी को डोनर एग की जरूरत है, एग डोनेशन की, तो बिना बताए तो कोई करेगा नहीं. बिकॉज नाउअडेज देयर इज पैटर्निटी टेस्टिंग, यू कैन डू डीएनए मैचिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल इन एनी लैब, राइट. तो कोई भी प्रॉपर एथिकल डॉक्टर तो सपने में भी नहीं सोचेगा कि ऐसा कुछ हो. सो आईवीएफ पर से अपना ही बच्चा है कि अपने वाइफ के ही एग्स निकाले, हस्बैंड का ही स्पर्म लिया है और वाइफ ही कैरी कर रही है. सो देयर इज नो टैबू अटैच टू इट. सो वो टैबू का जो था पूरा 30 साल पहले वो सब चेंज हो गया. 15 साल पहले सरोगेसीज भी करते थे तो कुछ कम्युनिटी बोलती है नहीं डॉक्टर आप डोनर ओनर कुछ भी चलेगा, लेकिन सरोगेट हमारे में एक्सेप्ट नहीं होगा कि किसी और मदर से जन्म हुआ है बच्चे का. हाँ, नहीं एक्सेप्ट करते. एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड, एवरीबडी. Really? Yeah. So now there is no मुझे taboo. ऐसा फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को छुपाते हैं कि उन्होंने आईवीएफ कराया है. 10%. Even surrogacy, even आप जैसे मेरी प्रैक्टिस देखो, we don't market, we don't advertise, हमारा कुछ भी नहीं रहता है, राइट. फिर भी इतने पेशेंट कहाँ से आते हैं. So they are all obviously being told by successful patients कि बाबा हमारा हो गया, आप जाओ यहाँ पे, अच्छा है, ट्रीटमेंट सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एथिकली होता है, अपना ही बच्चा है. So there is so much of awareness now, you know. So women will tell their friends, they will tell पार्टी में मिले तो चलो आप इधर जाओ उधर जाओ, वो तो बातें होती ही रहती है ना. So टैबू नहीं है अब इतना. Okay. And do people from bigger cities only come या बहुत सारे metropolitans and villages and all other places से also लोग आते हैं करवाने? Because infertility is universal. अब समझो cities में 1 in 2 है, जैसे मैंने बताया 46, अगर वाइफ 30 के ऊपर चली गई तो villages में भी 1 in 5, 1 in 6 तो है ही है. तो वो तो जो WHO के स्टेटिस्टिक 1 in 6 है वो तो सब जगह रहेंगे, तो हर जगह से आते हैं. आई थिंक अब कोई विलेज ऐसा रहा नहीं कि जहाँ पे आईवीएफ की नॉलेज ना हो. Really? आप रिमोट जाओगे तो भी किसी आईवीएफ सेंटर का बोर्ड वो एंट्री में ही आप देख लोगे. जब आप गांव में एंटर करोगे कोई तो आईवीएफ चेन वाला या कॉर्पोरेट चेन वाला है, कोई ना कोई तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा. और इंडिया बहुत बड़ा सेंटर है आईवीएफ का. यहाँ पे बोलते हैं लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे इंडिया में कराने के लिए. बहुत सारे आते हैं. मेडिकल टूरिज्म बहुत ही अच्छा है आईवीएफ के लिए, बिकॉज सक्सेस रेट्स आर गुड, इकोनॉमिकली वी आर. कम यहाँ पे बेटर है, वो अपनी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं कराने. डिपेंड्स कौन सी कंट्री. अब कोई कंट्री में इंश्योरेंस कवर है नहीं है, सो मेन कॉस्ट इज बिग फैक्टर. फिर कुछ सेंटर्स जैसे हमारे सेंटर में 80% पेशेंट्स आर दोज हु हैव फेल्ड आईवीएफ समवेयर इन द वर्ल्ड. सो नाउ दे हैव हर्ड फ्रॉम सम फ्रेंड कि बाबा मेरा भी 3 फेल हुआ था, फिर यहाँ पे हो गया, वहाँ पे हो गया. सो पेशेंट्स मूव लाइक दैट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. Okay. So that is how it is. और हमारे इंडियंस तो सब जगह है. 1 in 6 in the world is Indian. So it spreads very fast like wildfire. और काफी लोग के क्या मम्मी पापा का घर है यहाँ पे, तो उनका हॉलीडे भी कंबाइन हो जाता है. जैसे क्रिसमस में मैं कभी वेकेशन नहीं लेता, क्योंकि क्रिसमस में यूएस यूरोप सब पूरा वेकेशन 1 month शटडाउन. हमारे यहाँ फुल हाउस रहता है, जो कपल सब वहाँ से आते हैं आईवीएफ करने के लिए. So that is the time we never go. मेरे 12 साल से क्रिसमस में कहीं नहीं गया मैं. वाओ. आपने पूरी आपके करियर में कितने बच्चों को आईवीएफ के थ्रू बॉर्न किया होगा? ऑलमोस्ट 20,000 कपल तो प्रेगनेंसीज हो गई है, उसमें से काफी ट्विंस भी होंगे. तो शायद 30,000 के ऊपर तो बच्चे हो गए होंगे अभी तक. वाओ, आपने इतने को हेल्प किया है.
बच्चे लाने के लिए इस दुनिया में। बहुत सारे लोग अलग अलग रिक्वेस्ट लेके भी आते होंगे आपके पास। क्या कभी किसी ने आपको बोला है कि हमें लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए? वो तो बहुत कॉमन है, लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली इंडिया में वेरी स्ट्रिक्ट लॉज आर देयर। पीएनडीटी नाम का एक्ट है 1992 से शायद, कि जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स सिलेक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है इंडिया में। सो लीगल इलीगल कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड के कोई जेनेटिक प्रोब्स इंपोर्ट करके इलीगली भी करे कोई। सो आईवीएफ के द्वारा कोई भी ये सेक्स सिलेक्शन वगैरह नहीं कर सकता इंडिया में। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एंड इट इज अ गुड लॉ, बिकॉज इंडिया में यू नो कि फिटिसाइड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। धीरे धीरे कम हो रहा है, बट इट इज ऑल थैंक्स टू द लॉ के वो कम हो रहा है। बाकी दैट प्रॉब्लम वाज देयर एंड यू नो ये दुनिया की किसी और कंट्री में नहीं है, सिर्फ इंडिया में। सिर्फ बाहर जाओ सिर्फ तो इंडिया आप में सिलेक्ट कर सकते हो ना कि क्योंकि वहाँ पे लड़का लड़की चाहिए। फीमेल का एबॉर्शन नहीं कराते ना इंडिया में। प्रॉब्लम है कि अगर वो अलाउ किया सब तो फीमेल एबॉर्शन तो और बढ़ जाएगा फिर से। Oh my God. So that is a very bad thing ना। हाँ. तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। So we don't mind and we don't fight against it. We are very happy कि वो अलाउड नहीं है। But people must be coming and asking. बहुत सारे, कितने सारे कि हमें लड़का ही चाहिए। हाँ, लड़का चाहिए। ज़्यादा लड़का पे होता है। आजकल लड़की के लिए आने लगे। हाँ, अगर फर्स्ट लड़का है तो they are asking for लड़की। Okay. और किसी का अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, व्हाट इज द सक्सेस रेट? जनरली इफ यू सी यूरोप का आप देखोगे, गूगल करोगे 2023-24 सेल्फ एग्स यानी अपने एग्स और हस्बैंड स्पर्म के साथ आईवीएफ सक्सेस रेट कितना है, तो इट इज ओनली 30%। Okay, India we are at 40%, some months we are at 45%. Not that we have better technology or better doctors, पर यहाँ पे पेशेंट्स यंगर है। जैसे यूरोप में आपको 31 ईयर ओल्ड पेशेंट नहीं मिलेगी शायद। तो यहाँ पे बल्क ऑफ पेशेंट्स आर 30 to 35। वहाँ पे बल्क ऑफ पेशेंट्स आर 35 to 40। तो ये 5 साल का एडवांटेज जो इंडियन डॉक्टर्स को मिलता है, उसकी वजह से सक्सेस रेट गोज अप टू 40% और 45 एट बेस्ट। So the real truth is 40%. You know, we keep hearing lot of marketing, 70%, 80%, 90%, money back guarantee, package deal. So ये सब all this doesn't work. Patients को भी पता है कि Google is very easy to find out कि world में success rate क्या चल रहा है. So 40-45% if we maintain, we are very very happy and we are very good about it. Egg donation में थोड़ा बढ़ जाता है. Obviously अगर आप young eggs लोगे तो success rate maybe even 60%. So egg donation 60%, self eggs 40%. That is what success rate is. The best any clinic can achieve. Okay. In today's with today's technology. हाँ, got it. मतलब एक कपल को कब जाना चाहिए आईवीएफ के लिए? कैसे पता चलेगा कि अब मुझे आईवीएफ ट्राई करना चाहिए? हाँ, तो वो अभी गो बैक टू डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी के अगर 12 महीने तक कोई भी कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स रेगुलर करते हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो दे फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ इनफर्टिलिटी। फिर वो शायद अपने जीपी के पास या लोकल गायनेक के पास जाएंगे, तो बेसिक टेस्टिंग होगी, जैसे हस्बैंड की सीमेन टेस्ट होगी, वाइफ की हार्मोन टेस्ट होगी, एक सोनोग्राफी होगी यूट्रस की, ओवरीज की, फिर पीसीओ, एंडोमेट्रियोसिस अगर कुछ माइनर है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एंड एक ट्यूब टेस्ट हो जाएगा जिसको एचएसजी कहते हैं या कोई कोई लेप्रोस्कोपी कर लेता है। तो ये सब टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कि कौन सी डिजीज, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं हो रहा है, एंड देन सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट बिगिंस। तो गायनेकोलॉजिस्ट लेवल तक आईयूआई भी हो जाता है, जो सिर्फ हस्बैंड का स्पर्म लेके राइट टाइम पे छोड़ना है, दैट आईयूआई ट्रीटमेंट मोस्ट गायनेक्स विल डू। अगर वो भी 3 बार या 4 बार फेल होता है तो देन द पेशेंट बिकम्स एन आईवीएफ कैंडिडेट। अब आईवीएफ ओरिजिनली जब आया था 40 साल पहले, इट केम ओनली फॉर ट्यूबल ब्लॉक, ठीक है। तो दैट वाज द क्लासिक थिंग, बिकॉज ट्यूब का काम हम लोग बाहर टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे, बराबर। बट अब आईवीएफ इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज, बिकॉज उसकी जितना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और कोई है नहीं। जैसे मैंने कहा आईयूआई इज मैक्सिमम 10-15%, वो भी 10 में से 1-2 पेशेंट प्रेग्नेंट होंगे, तो बाकी 7-8 को तो जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। और आईवीएफ में इतनी सारी रेंज है टेक्नोलॉजीज की, यानी अगर 100 कपल मेरे पास जनवरी में आते हैं और मैं जो भी एडवाइस करूँ वो करते रहे 1 साल तक, तो 80 और 85 आउट ऑफ 100 विल गेट देयर बेबीज। सो इतना अगर टेक्नोलॉजी है तो देन व्हाई वेस्ट टाइम विद अदर टेक्निक्स, राइट। और आईवीएफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले क्या सबके मन में था, एक तो कि दूसरे का बच्चा है, तो वो तो क्लियर हो गया। फिर था कि बहुत बेड रेस्ट है, अब बेड रेस्ट 0 है, इट इज ओनली 10 मिनट्स। फिर था कि बहुत पेनफुल इंजेक्शन है, वो भी सब कम हो गए। अभी सब वजाइनल जेल्स है, टैबलेट्स है ओरल, तो वो भी सब काफी कम हो गए। एंड मेन सक्सेसफुल नहीं है, तो सक्सेस रेट भी अभी 40-50% इज वेरी गुड। और दूसरा था कि ट्विंस ही होते हैं, तो अब ट्विंस भी बहुत कम हो गए, अब सिर्फ 10-20% पे ट्विंस। सो एवरीथिंग हैज चेंज। लास्ट डेकेड में बहुत सारा चेंजेस आईवीएफ में आ गए। So now it is considered as first resort for lot of patients. मैंने बहुत सुना है कि एक तो ट्विंस होते हैं, पर उसका लॉजिक इज बिकॉज आप 2 एक बार में डाल रहे हैं ताकि एक हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों हो जाता है। That is why there is. पहले 2 बिफोर कोविड 3 भी डालते थे,
लॉट ऑफ क्लिनिक्स. Now it's not allowed. तो ट्विंस होते थे, ट्रिपलेट्स होते थे, बहुत सारे बाप ट्रिपलेट्स. फिर रे. ट्रिपलेट्स में फिर रिडक्शन करना पड़ता है या बहुत हाँ. बेड रेस्ट करना पड़ता है. इज नॉट अ गुड हाँ. एक्सपीरियंस ऑन द होल. फिर कोविड में इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ गए कि 2 से ज्यादा एम्ब्रियो किसी को हाँ. डालना नहीं है, बिकॉज वी डोंट वांट हॉस्पिटलाइजेशंस, Risk. वी डोंट वांट एक्सपोजर इन एडमिशंस, हॉस्पिटल्स, ऑल दैट. तो सारी दुनिया में सब जगह 1 या 2 पे एम्ब्रियोस पे आ गए. Okay. तो हमें लगा कि सक्सेस रेट ड्रॉप होगा, लेकिन हम्म. सक्सेस रेट ड्रॉप नहीं हुआ. हाँ. सिर्फ ट्रिपलेट 0 हो गए हम्म. और ट्विंस भी बहुत कम हो गए. Okay. सो ऑन द होल थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. यू नो इंडिया में क्या है कि इंश्योरेंस कवर नहीं है. हम्म. सो प्रेशर हमारे पे भी है, पेशेंट पे भी है कि बहुत ज्यादा साइकिल्स नहीं कर सकते. हाँ. यानी फर्स्ट सेकंड साइकिल में काम होना चाहिए. हाँ. सो दैट्स व्हाई वी टेंड टू पुट समटाइम्स 2 embryos, you know, for Okay. that pressure. Because of cost effectiveness. Cost factors, yeah. एक बार यहाँ पे कवरेज आ गया, सब आ गया, तो हम लोग भी एक ही एम्ब्रियो डालेंगे. बिफोर आई गेट टू कॉस्ट, मैंने बहुत सारी लेडीज से सुना है कि कोई बोलते हैं कि बहुत पेनफुल है और कोई बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हुआ. There is so many different people, different experience. नहीं, पेन थ्रेशोल्ड तो हर ह्यूमन बीइंग का अलग है. सो यू नो इफ यू टॉक टू जिसका प्रेगनेंसी हो गया है, हाँ. उनको कोई पेन याद नहीं रहेगा, बिकॉज उनको जो सबसे बड़ी चीज लाइफ में थी वो मिल गई, राइट. हाँ. अगर फेल होता है तो ऑब्वियसली हर इंजेक्शन चुभता है कि बाबा इतना सारा किया और फिर भी कुछ नहीं हुआ. सो Okay. दैट इज बाउंड टू हैपन, यू नो. But is IVF painful? इंजेक्शंस आर इंजेक्शंस, नीडल्स आर नीडल्स. तो 25 30 40 नीडल तो लगनी है. भले आजकल सब पेन डिवाइसेस है, यू नो, जैसे डायबिटीज में कैसे पेन खुद आती से है, वो करना नीडल देख भी पड़ता नहीं है. सकते, इतनी छोटी है, जस्ट लाइक अ मॉस्किटो बाइट. तो पेट पे ले लेना है अपने आप. तो पेन फैक्टर भी बहुत कम हो गया है अभी, पहले जैसा नहीं. Okay. Because of technology. टेक्नोलॉजी, बेटर डिवाइसेस, क्लीनर ड्रग्स, मोर रिफाइंड ड्रग्स, वॉल्यूम्स कम हो गए इंजेक्शन के, तो उसकी वजह से What do you think is the biggest myth about IVF? सक्सेस ज्यादा नहीं है, कॉस्ट बहुत है, पेन बहुत है, अपना बच्चा नहीं होता और किसी का होता. वो तो आपको मैं सच बताऊं तो वो जो पिक्चर बनी है गुड न्यूज अक्षय कुमार की, उसमें तो सबका ही माइंडसेट चेंज कर दिया कि सच्ची में ऐसा होता है कि आपका बच्चा नहीं है. नहीं, वो तो गुड न्यूज बैड न्यूज है, तो हमारी बैंड बजा दी. सो बेसिकली करण जौहर से मुझे एक शिकायत रहेगी, क्योंकि मैं कि ऐसी फिल्में क्यों बनाई, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. तो क्या हुआ था कि वी आर वेरी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस, बिकॉज हमको वो पायलट का जो रहता है ना, ह्यूमन एरर, 1 in 1 lakh एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी नहीं चाहिए. हाँ. सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम्स, वी हैव मैनुअल विटनेस सिस्टम्स. कोई भी एक लड़की अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, एग और स्पर्म का काम कर रही है, तो 2 लड़कियां उसे ऑब्जर्व करती है. Then there are alarms with the barcodes, अगर गलती से कुछ भी इधर उधर हुआ तो. हाँ. So we take more than normal precautions to make sure कि ये ना हो. Okay, so it is very very unlikely कि ऐसी कोई मिस्टेक कोई लैब में हो जाए. बट कभी कभी आप पेपर में पढ़ लेते हो ना, हाँ. कि यूरोप में एक व्हाइट कपल को ब्लैक बेबी हुआ, मिक्सअप हुआ. सो रेयर. नाउ दीज आर ऑल यू नो 1 in 1 lakh इंस्टेंसेस. अब आप पूरे इंडिया का, वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखो तो एक आध केस इधर उधर रिपोर्ट हो जाता है, राइट. बट गुड न्यूज, मूवी रिलीज हुई और हमको नेक्स्ट डे 4 पेशेंट के फोन आ गए. डॉक्टर आर यू श्योर ये हमारा बच्चा है, और किसी का नहीं. तो हम लोग तो हंसते हंसते बोलते थे, बट कुछ कुछ उसमें सीरियस भी कर रहे हैं कि तो आप डीएनए मैच करा लो, कुछ भी करा लो, वी आर श्योर दैट इट इज योर बेबी. और फिर दिखता है ना, सी मम्मी और मदर इन लॉ जो है, जैसे जन्म होता है वैसे ही पता चल जाता है फेस पे से कि हाँ ये अपने फैमिली का पता चलता है. हाँ, फैमिली का ही सब है, लुक्स एंड ऑल. Okay. सो लॉट ऑफ द इमीडिएटली डाउट्स गो. जैसे ही बच्चे आते हैं, नो देयर डाउट्स आर ऑल गॉन. हाँ. अब ये व्हाइट एंड ब्लैक का भी एक आध, यू नो, इट इज ओवर हाइप, वो ट्रू है कि नहीं वो भी पता नहीं है. क्या क्या रिपोर्ट्स आ जाते हैं आजकल. एंड व्हाट अबाउट IVF? हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू डू? मैंने बहुत सुना है कि एक बार में नहीं हुआ है, हमें 2 बार 3 बार कराना पड़ता So है. normally we recommend 3 to 5 cycles. We never say 1 Isn't cycle. that a lot? No, it's not It's not. really a lot. Isn't it a lot for the body? हमारी बॉडी पे कितना जा रहा है अगर हम 5 See, बार IVF करा का रहे हैं? मेन टेक होम मैसेज क्या है कि फिजिकली इट इज नॉट दैट टैक्सिंग. इट इज नॉट सम सर्जरी. कोई सर्जरी नहीं है कि आपको पेन है, स्टिचेस लिया है, ये है, वो है, ड्रेसिंग करना है, वैसा नहीं है, राइट. We are dealing with young couples, young sensitive women, emotional people. So the most what we say is IVF is a emotional roller coaster. क्योंकि जब तक नहीं होता है तब तक it is a disaster emotionally, you know. वो फेल होना, फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वेट करना, फिर उस दिन शाम को सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो चलो दुनिया चेंज हो गई, नेगेटिव है तो यू आर शैटर्ड, देन अगेन टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इट, यू नो, द कपल को काउंसलिंग. सो काउंसलिंग इन एनी IVF क्लिनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. जो काउंसलर का, क्योंकि डॉक्टर कितना टाइम देगा ना, अगर इतने सारे पेशेंट्स है तो ही कैन नॉट गिव टाइम टू ईच एंड एवरी वन. सो यू नीड अ गुड काउंसलिंग बैकअप टीम जो पेशेंट के साथ, यू नो, दे विल बी ऑल द टाइम विद देम, फ्रेंडली शोल्डर, डोंट वरी, हो जाएगा, फिर से ट्राई करेंगे, ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे. सो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है. बट इमोशनल रोलर कोस्टर तो है ही है. सो some women are very strong, some cannot take it so well, some get shattered in 1 cycle and don't want to do another cycle for 5 years.
So everybody has different experiences and different things, you know. But Yeah, the fact is that you have to understand international success rate is 30-40%. We can't beat that. And that means if you do 3 times, there is a chance that in one you will click. That is the whole logic behind do 3 cycles. क्यों हम 3 बोलते हैं? क्योंकि अगर 30-40% का मतलब ही वही है ना कि 1 in 3 यानी 3 साइकिल में से एक में प्रेग्नेंट हो जाओगी. और आपके पास ऐसे भी केसेस हुए होंगे जहाँ पे आपने 3 बार IVF साइकिल कराया फिर भी somebody is not able to get pregnant. How do you deal with it as a doctor? नहीं, वो फील तो होता ही. हमारा तो डेली मंथली वीकली ऑडिट होते ही रहते हैं. कौन से पेशेंट क्या करना है, अब क्या नहीं. बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग ओनली विद 80% पेशेंट्स. हमारे मैंने पहले भी बताया ना, दे आर फेल्ड IVF फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Okay. तो उनको तो बहुत इंडिविजुअलाइज अटेंशन देना पड़ता है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम बनाना पड़ता है. ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी है सबको सेम इंजेक्शन लगा दो, सेम ट्रीटमेंट कर दो. वो हमारे क्लिनिक में पॉसिबल ही नहीं है. सो वी हैव टू गिव लॉट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों फेल हुआ और अब इसका सोल्यूशन क्या है. एंड देन थर्ड पार्टी ऑप्शंस तो बहुत है ना. सो समझो 3 साइकिल फेल हुई है बिकॉज ऑफ बैड एग्स. तो अगर वो एग डोनेशन एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका काम हो जाएगा. अगर वो फिर भी नहीं मानेगी तो और एक 4th साइकिल कभी कभी हो जाएगा. बट चांसेस आर दैट फाइनली शी विल एंड अप विद द थर्ड पार्टी प्रोग्राम. बट टू एक्सेप्ट द थर्ड पार्टी थिंग इज नॉट ईजी. तो वो और एक इमोशनल रोलर कोस्टर. तो उसमें कोई कपल्स 5 मिनट्स लगते हैं, कोई कपल्स को 5 साल लगते हैं टू अग्री एंड एक्सेप्ट कि ओके चलो अब इसमें जाना पड़ेगा. अब आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे से सीनियर लोग होंगे वो तो इस प्रोसीजर को देख के बोलते होंगे कि अगर आप किसी डोनर एग का या डोनर स्पर्म ले रहे हैं तो वो एक्चुअली तो आपका बच्चा नहीं हुआ ना टेक्निकली. नहीं, ठीक है. तो उसके लिए एपिजेनेटिक्स कम्स इनटू रोल ना. अब आप समझो किसी भी फैमिली में देखो 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स है, समझो एक ही फैमिली के. हैव यू एवर सीन के चारों सेम है? कभी सेम नहीं रहते. नहीं, सेम तो सब नहीं अलग होते. अलग है. शायद लुक्स में थोड़े सिमिलर रहेंगे बट लाइक्स, डिसलाइक्स, म्यूजिक टेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, टेस्ट इन फ्रेंड्स, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, राइट. सिबलिंग्स हमेशा अलग रहते हैं. Yes. तो ये क्यों होता है? अगर सब कुछ अपना जेनेटिक्स ही है तो चारों के 4 सेम होने चाहिए, अलग होना ही नहीं चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. यानी समझो डोनर में कुछ 2 मिलियन जीन्स आ गए एग में और हस्बैंड के स्पर्म लिए 2 मिलियन जीन्स आ गए, 4 मिलियन जीन्स आ गए जो मैंने पेशेंट में डाले. 4 मिलियन जीन्स डोमिनेंट तो नहीं होंगे. एक ही बच्चे को ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ग्रीन आइज नहीं हो सकती, राइट. तो 4 मिलियन में से कोई भी 4000 जीन्स डोमिनेंट होते हैं. तो ये 4000 का सिलेक्शन कौन करता है? वो कैरिंग मदर करती है. यानी जो मदर कैरी करती है बच्चे को वो एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन करती है इसका. और वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सा वो 4 सिबलिंग में से कैसा बनेगा, क्या बनेगा, you know, all those things. So there are so many aspects to motherhood ना. It is not just the genetics of the egg. Genetics of egg is important, but अभी अगर choice नहीं है, चलो वो चैप्टर अगर क्लोज हो गया कि एग्स है ही नहीं अभी, या बहुत खराब क्वालिटी के, तो व्हाट आर योर चॉइसेस? एक तो चाइल्डलेस रहो, सेकंड एडॉप्शन करो, या थर्ड एग डोनेशन लो. So which is the best? It depends on the person. Yeah, but 90% will say egg donation. Yeah, so, yeah, it's very well accepted. It's one of the most popular treatments all over the world, not just India. ओके. और अब आप ये बताइए कि मस्ट बी अ बेसिक क्वेश्चन, लॉ के हिसाब से वो बच्चा किसका हुआ? कपल का ही हुआ. Okay. डोनर के कोई राइट्स नहीं रहते ना. डोनर अपना लीगल वर्क करेगी, एफिडेविट्स बनाएगी कि शी हैज नो फ्यूचर लीगल राइट्स ऑन द बेबी. शी इज जस्ट डोनेटिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू अ कपल, दैट्स ऑल. Won't she get some traits from the original mother? Of course she will. 50% genetics is coming from there ना. तो मैंने कहा looks वगैरह थोड़ा तो आ ही सकता है. Actually तो mother वो हुई ना जिन्होंने. नहीं, but see when woman has so many components of motherhood, right? Egg is one small thing. जी. फिर pregnant होना, उसका पूरा experience, उसका baby is kicking inside, फिर delivery, फिर breastfeeding, फिर 80-90% of upbringing भी mother ही करेगी. अब इतने सारे components में से egg is just one sacrifice, right? अगर आप होलिस्टिकली थिंक करो तो, okay, right, whereas husband has only one sperm usually. So a lot of couples think like that and say okay अब choice नहीं है, तो it is acceptable thing. And because it is coming from her body, all those negative thoughts usually they disappear the minute pregnancy test positive आती है. तब तक ये turbulence चलता रहता है, मेरा जीन्स उसका जीन्स, मेरा जीन्स उसका जीन्स, वो सब चलता रहेगा. The minute she gets the news जिसके लिए वो इतने सालों से she is waiting, वो सारा माइंड चेंज होता है. वो मेरा 32 years experience. Oh, nice. I wouldn't have known. And they are so happy with the final outcome. Oh, okay. And they come back for second child also so many times. अच्छा, okay. ऐसे भी बहुत सारे cases होते होंगे जहाँ पे IVF ट्राई करने के बाद, फेल होने के बाद नेचुरली भी they are able to conceive couples. Yes, that shows के स्ट्रेस का कितना रोल है इनफर्टिलिटी में. काफी बार होता है कि 15 साल तक बच्चे नहीं हुए, फिर एडॉप्ट कर लिया कपल ने,
और नेक्स्ट ईयर नेचुरली प्रेग्नेंट हाँ हो गई मैंने है। ऐसे केसेस हाँ, तो सुने ये हैं। शायद कहीं पे कोई स्ट्रेस सेंटर का पूरा वो स्ट्रेस एंजाइटी निकल गया एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग लाइक अ नॉर्मल कपल और प्रेगनेंसी हो गई। या सेम थिंग हैपेंस इन आईवीएफ आल्सो। Okay. आईवीएफ में भी बहुत कॉमन है कि 8-10 साल नहीं हुआ, इधर उधर क्लिनिक्स डॉक्टर्स, फाइनली आईवीएफ से एक बेबी हुआ एंड नेक्स्ट मंथ शी कम्स नेक्स्ट ईयर कि फिर से नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। सो ये होता है बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। It's not It may common. be 2 to 3% Okay. at best, but those cases become famous. So हाँ. 2-3% looks like बहुत common। मैं एक लेडी को जानती हूँ जिन्होंने 3 बार आईवीएफ ट्राई किया और फिर उन्होंने गिव अप कर दिया, और उन्होंने कम उम्र में ही ट्राई किया था, बट फिर उन्होंने जब गिव अप कर दिया और फिर 2 साल बाद नेचुरली हो गया, तो शी इज लाइक व्हाई आई वेंट थ्रू दिस। Stress thing must have changed. Some Stress. hormones in the body must have changed. So what can we do before only to You can't. You have to try and relax, take it easy. Means you have to get into alternate things like pranayam, meditation, yoga, whatever helps you. You know, to keep your mind cool and subdued. Workouts, weight training, good diet, good friends. Keep yourself busy. Don't keep thinking about infertility. Don't go on Google, you know, हाँ, and Google keep तो reading dangerous। IVF. कभी पेशेंट्स ईमेल लिखते हैं तो 30 questions, 40 questions, 50 questions. Means पूरे सारे Google के पूरे questions, you know, कि ये Google ये कहता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, गूगल ये कहता है आप क्यों बोल आई रहे थिंक हो। वो See, but सब we are doing डॉक्टर्स out of की experience ना। सब So, डॉक्टर्स की परेशानी ये है कि हाँ, गूगल पर के क्वेश्चंस आंसर लेके आ करने में रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट शोज के पेशेंट पे स्ट्रेस लेवल कितना है कि वो पूरा दिन उसका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर है। सो दैट इज व्हेन दे स्पॉइल थिंग्स फर्दर। It's a lot emotional Lot of emotions and mental, how you are Yes, taking yes. that Lot thing of and not emotions. taking. That's why clinic support, counselor support is the most important for success. Very important for success. Is your clinic one of the first who started this? Because that's what I've heard, that they have done lots of help on the counseling front. Otherwise, other clinics don't pay so much attention. They do their process and No, everything. everyone knows because now, of course, in the new law, it is mandatory to have a trained professional counselor in the clinic. So now all clinics will have. But again, you know, how much experience they have is very important. To take a हाँ, couple to through the deal with journey. such. कि हर चीज का अब इसकी वजह से फेल हुआ तो उसका काउंसलिंग क्या होना चाहिए, कि अब थर्ड पार्टी लेने की टाइम आ गई है तो उसका काउंसलिंग कैसे होना चाहिए। सो दैट काउंसलर हैज टू हैव ऑल दैट इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड नॉलेज टू बी अ एफिशिएंट काउंसलर। सही है। वन मोर बिगेस्ट मिथ आई हैव हर्ड इज दैट अगर आईवीएफ करेंगे तो ज्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम निकलेगा। हैव यू नॉट हर्ड? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज इनिशियली आईवीएफ कौन कर रहा था 30 साल पहले, जो 38, 40, 42, यू नो, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, तब आईवीएफ की सक्सेस रेट भी नहीं थी, 5% ही थी। सो आईवीएफ वाज अ लास्ट रिसोर्ट। अब अगर 40 पे कोई लेडी नेचुरली भी प्रेग्नेंट होती है तो शी हैज हायर रिस्क ऑफ एब्नॉर्मल बेबी देन अ 20-year-old और अ 30-year-old। अब वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी, अब आईवीएफ ओनली हेल्प हर टू गेट प्रेग्नेंट, बट बच्चा तो वही आएगा जो उसको नेचुरली आता, राइट। सो जो एब्नॉर्मेलिटीज 40 की एज की वजह से हो रहे वो तो आईवीएफ में भी आएंगे ना। आईवीएफ कैन नॉट एलिमिनेट इट। हाँ, आजकल पीजीटी नाम की टेस्ट है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जहाँ पे हम लोग ये 40-42-year-olds में वी डू जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। इवन इफ देयर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम इन द कपल्स, और तो वो भी करा सकते हैं ना, जिन्होंने अगर दिखाया कि आपको जेनेटिक टेस्टिंग, वैसे नॉर्मल लोग नहीं करा सकते ना, करा सकते बट इंडिकेशन नहीं है ना, देयर इज नो हाँ. नीड, और उससे थोड़े कभी कभी सक्सेस रेट कम हो जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी इन्वेजिव प्रोसीजर। तो अगर जरूरत है तो वही करना है। तो इनिशियली ये सब कपल्स वर 38-40 ना, तो तब ये मेंटल परसेप्शन सबको हो गया कि एब्नॉर्मल चाइल्ड। Now there are lakhs and lakhs of babies, right? So now they have proved beyond doubt, any doubt, not even 1% doubt, that whatever anomalies are there are strictly related to maternal age. Only the age of the woman is correlated with the number of abnormalities you get in the baby. It has nothing to do with IVF. Nothing at all. क्योंकि अभी जो मेल फैक्टर वाले कपल्स है जहाँ पे स्पर्म इश्यूज है वो तो सब 28, 30, 32 में आ ही जाते हैं हमारे पास, सब नॉर्मल बेबीज आते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। Oh, okay. So in a year, suppose even from my clinic we have say 100 into 10, maybe 1000 or something, 1000-1200 babies, maybe 1 or 2. और अगर आप नेचर का इंसिडेंस देखोगे तो दैट इज ऑल्सो 2%. इट इज 2%, 2 in 100 in real nature. In young couples, normal couples without IVF, chance of an abnormal child is 1.8 to 2%. So that same risk is going to remain in IVF as per that age of the wife. I'm glad I spoke about this because मुझे ये आंसर पता है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को परसेप्शन ऐसा है, तो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है। आप कोई मिरेकल बर्थिंग स्टोरी बताइए जो आपने, आपके हिसाब से भी मिरेकल हो गया। हर स्टोरी मिरेकल ही रहती है, बट बिकॉज जो 30 साल पहले जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था, अरे प्रेग्नेंट हो गई, वो आज भी वैसा ही है। सो इट डजंट चेंज फॉर अस। You still must be getting so happy. Because we know कि so much effort goes into it, so much of science goes into it, you know, application goes into it, तब जाके ये न्यूज़ मिली है किसी को। But initially there were very few patients, right?
तो एक पेशेंट आई थी मेरे पास 28 साल पहले, एंड शी सेड आई एम 42 and she had lost her 20-year-old daughter in a car accident, and the daughter was engaged to get married, but she had gone shopping with मासी मासा and two cousin sisters. वो लोग मैसूर बेंगलोर रोड पे थे और हाँ. ट्रक से एक्सीडेंट होके पांचों गुजर गए वहाँ पे. Oh my. सो यू नो वी रीड ऑल दिस इन द पेपर्स एवरी डे, और दो सेकंड में भूल जाते हैं कि ठीक हाँ. है रोज होता रहता है. सो दैट लेडी देन केम एंड दैट वाज हर ओनली डॉटर. So husband wife आए, कुछ नहीं, खाली tears, and they put the photo on my table and said we want this girl back. तो मैं बोला अब ये 20 साल की लड़की है और ये 42 एज बता रही है, तो ऐसा कैसे? बोला शायद जल्दी शादी होगी उस जमाने में, ये वो व्हाटएवर. सो IVF स्टार्ट किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स साइकिल्स फेल्ड. अब उस जमाने में वैसे भी सक्सेस रेट बहुत कम थे, तो 6 के बाद मैंने उसको बोल दिया कि मुझे लग रहा है आपकी एज ज़्यादा है, इसलिए आपके एग्स अच्छे नहीं है, तो ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप छोड़ दें. कि नहीं, मैं जब तक आप मुझे बेबी नहीं देंगे मैं क्लिनिक छोड़ने वाली नहीं हूँ. बट अगर उनके हेल्थ के लिए हाँ, अच्छा तो फिर 7th साइकिल में प्रेग्नेंट हुई. ओह 7th cycle she got pregnant and she delivered again a girl, and that girl is now 26-27, and they made me do the kanyadan of that girl. हाँ. Because वो हर साल birthdays वो आती, because for her see वो पूरा जो डिप्रेशन और इसमें के लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं बचा. अब अगेन दे हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यू नो. तो that was one of the miracle babies where whole life changing experience for couple also and for us also. हाँ. You know, And okay, it's this is something unbelievable which happens. wow. अब तो ये एवरी मंथ एक आध केस होता ही है ऐसा. ऐसे वाले भी जहाँ पे यू डोंट रीड के मारवे बीच पे 3 स्कूल के बच्चे ड्राउन हो गए. डू यू गिव इट अ हाँ. सेकंड थॉट? वेयर डू द पेरेंट्स गो देन? Where do they go? अब वो तो 40 के ऊपर रहेंगे, तो IVF में ही होते हैं ना सब. बिकॉज सी दे वांट द चाइल्ड बैक इन व्हाटएवर वे. That मुझे नहीं tragedy, पता था कि लोग so ऐसे बोले कि that वापस- tragedy you cannot even imagine. Nobody Of can course, imagine I that can't tragedy. imagine. So yeah, I so can't then imagine. those couples तो But we मुझे take ये on नहीं पता था कि priority. उन्हें ऐसा होगा कि वापस आ जाए वो, because Means that they- is अपना इंडिया में वो फीलिंग होता है ना, religiously Hindus we all believe rebirth this that. rebirth. So they all know when they are very happy. Then when I do IVF they get the twins. हाँ. Means see, for them they may never forget the first, but Of at least course. now they have a distraction, diversion, life gets back to normal, something to look forward to, you know, children are back, everything is happy. So these are some of the heart rending stories, you know, जहाँ पे Wow. really it's some Yeah, experience, must be real moved, experience. like very When you tell them कि हाँ positive है, and when they hold the baby, it's unbelievable. oh my god, you must be having so many more stories. Tell me one more. So many of these type of cases only. Then one more we had done. She was 52 and husband was 56. This was before the laws came. That boy is now 17-year-old. So they came at 52 and 56. He was a builder. And then again, first failed, second failed, and I said, no, you leave now. It's not going to happen. And she had blood pressure, sugar, so she was very high risk for pregnancy. 52 is allowed to do IVF Before the law. So this Before, was 18 now years it's ago not when allowed. we didn't have laws. So that time we didn't have laws. Na? Laws came in 2022. Correct. And good it came. We are not very proud of having done all these old age pregnancies. But the story is there. Na? So they had so much money, so much this, builder, but no kids. So 52, and then before third cycle I said, now you stop. I don't think it's going to work. So again, you know, no, I'm going to commit suicide if you don't treat me this, that, you give me a baby anyhow. So somehow she got pregnant. Okay. And then she had twins. And then she couldn't take it because with the BP, sugar, ये वो सब 7.5 महीने में डिलीवरी हो गई instead of 9 महीने के बदले. तो प्री मैच्योर थे. फिर बच्ची जो थी वो नहीं बच पाई, और लड़का 17-18 साल का हो गया है, and he is very nice, very healthy, first class, nice it is. So they also, now all these patients they become family for us. वो हर साल मिलने आते हैं, हर बर्थडे पे आते हैं, मेरी बर्थडे उनकी बर्थडे क्लिनिक में सब आ जाते हैं वहाँ I'm sure वो क्रेडिट आपको ही जाता है कि तो आपने उनके लिए किया. वो पूरा उसकी लाइफ ही हो गई ना पूरी. इट्स अ हाँ. मिरेकल फॉर देम ना, उनके लिए तो मिरेकल ही हो जाता है पूरा. बट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ ग्राउंडेड बिकॉज फाइनली साइंटिस्ट है, तो वी डोंट वांट इट टू गो टू आवर हेड्स, यू नो. Heads, yeah. How do you not let it go to your We head? have to keep it in under control. How you keep it under Because see, control? the failures are also there, no? Hmm. So it's for us, there are two opposite things. There is no middle path. Either you become God or you become Shaitan. So it's one of the two. हाँ सही बात है. लोग आपको देख के ऐसे ही बोलते होंगे कि मतलब आपने हमारे लिए हाँ, so best to stay tempered on a middle path. कि ठीक है, we have seen enough of both now. So हाँ, we know practice everybody won't also. get pregnant, and we hope that maximum जितने pregnant होंगे उतना अच्छा है. आपको सबसे ज्यादा कोई strangest thing anybody has requested from you? यही सब होता है. बॉय गर्ल, ब्लू आइज चाहिए, ग्रीन आइज चाहिए, बोलते हैं गोल्डन आइज blue चाहिए, eyes डिजाइनर चाहिए. बेबी चाहिए. हाँ, but all Designer that is all, baby? that's all hyped. ऐसा कुछ है ही नहीं. There is कोई आपको nothing like a आके- designer baby. डिजाइनर में हाँ. किसी ने आपको आके बोला है कि मुझे ब्लू कलर हाँ, आइज बोलते चाहिए ना. बच्चे का? हाँ, yes. फिर आप क्या बोलते हैं उन्हें? वो ऐसे ही हंसते हंसते कि नहीं, not possible, sorry.
unless you marry a woman with blue eyes. पर फिर भी इतना चांस है, फिर भी 30% चांस होता है ना, 30-40% chance. ऐसा नहीं है जरूरी के. I feel like beyond a point it's on God, no? Of course. All these Why are we things. at 40%? बाकी 60% we don't know. हाँ, कि क्योंकि why someone gets pregnant, doesn't get pregnant. Many times we don't have scientific answers also. Eggs look very good, embryos look very good, uterus is very good, and failure. That is also common, na? हाँ. It's not that we always find a cause. हाँ, और कुछ लोग तो बहुत हेल्दी होते हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है, फिर भी आईवीएफ नहीं, और आईवीएफ करे तो भी वो सक्सेस नहीं होता, और बुक्स में देखो, पेपर पे देखो तो एवरीथिंग इज फाइन. Yeah, but that is the dangerous case. ये जो क्यों? आप कह रहे हैं ना कि सब कुछ नॉर्मल है, मींस वो उनकी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. हाँ. यानी एग्जिस्टिंग टेस्ट जो वर्ल्ड में है उससे साइंस को भी पता नहीं चला है कि आपका प्रॉब्लम क्या है. पर कुछ ना कुछ बात So है. sometimes they are 100% बात है ना, नहीं तो क्यों नहीं हो रहे प्रेग्नेंट. इट्स ऑन गॉड्स हैंड्स. No. नहीं होना होगा. These are the cases वहाँ जब आईवीएफ करते हैं तब पता चलता है कि शायद एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या स्पर्म एग के अंदर जा नहीं पा रहा है, शेल को तोड़ नहीं पा रहा है, या ट्यूब्स भले खुली है लेकिन ट्यूब्स काम नहीं कर रही है. ट्यूब के 3 काम है: अंडे को उठाना, अंडे और स्पर्म को मिलाना, बच्चे को तैयार करके यूट्रस तक पहुंचाना, या यूट्रस की लाइनिंग में कोई डेफिशिएंसीज है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है और बच्चे को पकड़ नहीं रही है. सो देयर आर 6-7 डिफरेंट एरियाज जो इन केसेस में ऑपरेशनल रहता है. तो कभी कभी उनको गलत एडवाइस मिलती है कि अरे सब नॉर्मल है, डोंट वरी, छोड़ दो, नेचर पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो, हो जाएगा, नथिंग टू वरी. एंड दे आर द वंस जो बहुत साल वेस्ट हो जाते हैं उनके ऐसे ही. तो उन क्या कर तो सकते हैं इनके वो पीछे लोग? तो और एग्रेसिवली करना है कि फटाफट आईयूआई 2 साइकिल करना है, नहीं हुआ है तो इक्सी साइकिल करना है, और इक्सी में ही उनके 70-80% प्रेगनेंसी हो जाती है. बिकॉज दैट मेन थिंग, पुटिंग द स्पर्म इनसाइड द एग, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता और वो टेस्टिंग में नहीं पता है. टेस्टिंग चलता में है. पता नहीं चलता है, वही प्रॉब्लम. ओके. उनके क्योंकि सब लोग- रिपोर्ट्स नॉर्मल है. हाँ. सो कई बार हस्बैंड बोलता है कि मेरे सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है, आप कैसे बोल रहे हो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है. नहीं, टिल यू डोंट बिकम अ फादर देयर इज नो प्रूफ ऑफ फर्टिलिटी. Till a woman doesn't become a mother, no proof that the egg is good quality. Whatever we tell you, whatever reports say. ओ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ दे होंगे कि हमारे नसीब में अभी नहीं है नहीं. तो नहीं होगा. छोड़ते तो कोई नहीं है, करते सपोज दे फेल, हाँ. और समझो क्लिनिक पसंद नहीं आया उनका, तो डिसअपॉइंट होके 3 महीना 6 महीना घर पे बैठ जाएंगे. फिर वापस कोई वेल विशर, अब चलो इसके पास चलो, उसके पास चलो, और फिर से चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है. सो द गुड एडवाइस इज कि जितना आपको मार्केट रिसर्च करना है पहले कर लो. 5 डॉक्टर से मिल लो, गो बाय रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट हुई, ये प्रेग्नेंट हुई, वो प्रेग्नेंट हुई, एंड वंस यू सिलेक्ट अ गुड क्लिनिक, उसको छोड़ना नहीं है. यू हैव टू रिमेंबर, जो फर्स्ट डे में बोल रहा हूँ कि 3 साइकिल 4 साइकिल लग सकती है, तो वो याद रखना है. यू नो, इमोशनल इज ओके वन थिंग, बट यू कांट जस्ट कीप मूविंग अराउंड. यू नो, एक फेल हो गया, चलो अभी ये दूसरा डॉक्टर है, चलो अभी बैंगलोर जाएंगे, चलो अभी लंदन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है काम. सो आईवीएफ नीड्स दैट कंटिन्यूटी कि 3 से 5 साइकिल एक अच्छे क्लिनिक में लगातार करते रहना. एंड ड्रॉप आउट तभी होना चाहिए कि अगर आपको क्लिनिक नहीं पसंद आया, for some reason, whatever. Okay. That is your choice, of course. Have you seen any unethical practices in this industry जो होने बहुत नहीं चाहिए सारे लेकिन हुए करते होंगे, हैं? तभी तो इतने लॉज आए ना, क्योंकि नाउ वी आर वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. इतने पहले मेरे 25-30 साल में कोई लॉज ही नहीं थे. हाँ. बट वी यूज्ड टू सेल्फ रेगुलेट कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है. जैसे यानी क्या किसी नहीं को करना है? किसी को बोले बिना मिक्स नहीं करना है, किसी और का कुछ डाल नहीं देना है, तो जस्ट फॉर लोग ऐसा सक्सेस. करते हैं? करते होंगे ना, अब क्या पता. सी फॉर सक्सेस पीपल में डू एनीथिंग ना. नया कोई अपकमिंग स्ट्रगलिंग क्लिनिक है, सक्सेस रेट नहीं है, सबके सक्सेस रेट नहीं होते ना. काफी सारे क्लिनिक्स के सक्सेस रेट्स 10%, 5%, 0%, वी डोंट नो. हाँ. तो वो तो फिर डेस्परेट हो जाएंगे ना, अभी इतना इन्वेस्ट करके बैठे, क्लिनिक खोल के बैठे. मस्ट बी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, बट पर ऐसे होता कुछ तो होगा. केसेस आएंगे गवर्नमेंट की लाइट में, तभी तो लॉज आते हैं ना. सो व्हेन डू लॉज कम? व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट. Problem, हाँ. अगर कोई कंप्लेंट कहाँ से गई है तभी तो लॉ आए होंगे. सो नाउ वी हैव स्ट्रिक्ट लॉज व्हिच आर वेरी गुड, ताकि सब इलीगल क्लिनिक्स जो भी अनक्वालिफाइड है वो सब एलिमिनेट हो गए. अभी सबका लाइसेंसिंग है लाइक अब्रॉड. तो एवरी क्लिनिक हैज टू हैव अ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली हो रहा है. ऑल्सो नया है ये साइंस और टेक्नोलॉजी, इसलिए इसका और लॉज इसमें भी मिसयूज उसके के बहुत हिसाब- सारे एवेन्यूज है ना. जैसे तभी कि तो वही जो मैंने बोला ना कि मिक्सिंग हो जाता है, ये भी मिक्सिंग कर और ये सकते हैं. सब सक्सेस दिखाने के लिए. सक्सेस के लिए Oh my God, I would not imagine. I don't know, because this is hearsay, you know. Abhi we have no proof, but now government has brought these laws ke how everything has to be done, what are the SOPs, standard operating procedures, minimum staff requirements, minimum equipment requirements, everything is now law. Okay. And everything is very strict punishments. Like surrogacy में तो कोई भी violation हुआ तो it is non bailable straight. Oh. हाँ, ऐसा नहीं है कि फाइन भरा निकल गए, ऐसा नहीं है. So now nobody will dare do anything. And if there's one thing you could ban in the IVF clinics, what would it be today?
बैन तो नहीं करेंगे, एवरीथिंग शुड बी अलाउड बट शुड बी रेगुलेटेड, बिकॉज एवरी टेक्निक जो आती है वो किसी ना किसी के फायदे के लिए ही है ना. Okay. अब सरोगेसी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई इंडिया में, तो काफी सारे आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि रिच कपल सब अब्रॉड जा रहे हैं, बट अभी मिडिल क्लास का क्या होगा. सो नाउ सी दैट वी नीड सम अमेंडमेंट्स ना, थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन आ जाए, कुछ आ जाए, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ जेन्युइन कपल्स जहाँ पे यूट्रस डैमेज्ड है या कुछ है, तो क्या कर सकते क्या हैं. करेंगे. Okay, got it. You had Karan Johar come to you and be like, I need help to become a father, and you brought the children to this world, helped in bringing the children to this world. How did your career change after that? Career change तो नहीं हुआ, but it was a big social shift because a single father was a new concept in India. It was popular in the West. In the US, it's very popular. So we were flooded with inquiries from single fathers, potential single fathers for surrogacy. And just when it was about to become because it's a very debatable area. The single fatherhood is, हाँ. it's always there is pros करना and cons. चाहिए, नहीं करना चाहिए, there's always अच्छा नहीं, for and अच्छा है. against. कि female child होगी तो क्या होगा, male child होगा तो क्या होगा, so there were a lot of debate and all that going on. So before we could really get around it, the law came that now it is prohibited. So now we are not allowed to do surrogacy for single fathers. Okay. So also single mothers also, it's not allowed unless they are widowed or divorced. So just as a career choice, I have a very good career, I don't want to waste 1 year in pregnancy, so I will do surrogacy. That is not allowed Not for option. a single girl, no. And even for couples, it is only allowed if we prove that the uterus is badly damaged. A lot of IVFs have failed, or they've had a lot of miscarriages, or she has a life-threatening health condition. After permission from lot of authorities and a judge, only then we can do the procedure. And that too only for a first child. So nobody can do surrogacy for a second child or a third child. Oh no. No. So these are all the new laws which have come now. और पहले नहीं था ये. पहले कुछ भी नहीं था पहले. Okay. And आपने also शाहरुख खान and गौरी के अब्राहम को, now they called Abraham, you made them also pregnant through surrogacy उन्होंने किया था. तो आप कुछ उस process के बारे में बता सकते हैं? The same standard surrogacy process. Nothing different. For me, all patients are the same. So कुछ अलग नहीं रहता है, कुछ special नहीं रहता है. Everything is similar. What we do for all patients, we do for them also. Again, wasn't it a boom के मतलब सबने बोला अरे शाहरुख खान कर सकता है तो फिर तो normal बात है. सब acceptance थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. Maybe acceptance आ गया. क्योंकि शाहरुख खान ने किया है. Yes, possible. But फिर और against लोग भी जाते थे. सब दोनों तरफ से रहता है सब. So that way it was good because it brought a lot of awareness about the procedure. So you are correct that there was a big boom after that for surrogacies. And people must be coming to you only कि जिन्होंने शाहरुख खान को किया उन्हीं के पास जाएंगे हम भी. वो तो आज तक people walk in only on that. हाँ कि आपने. I mean, there are people from Middle East and Africa, and US, UK, name the country. वो इसी बात पे आते हैं कि we found you because you made Abraham. You made Abraham. That is something which will last forever. So it's one of my best memories. Okay, and how did these people from, for example, Bollywood, वो आपके पास आना चालू कैसे हो गए? On results only, na. Word of mouth. My whole practice is only word of mouth. Someone gets pregnant, tell somebody else. That's all, simple. Okay. And women love to talk, no? वो तो सब शेयर करते ही हैं औरतें तो. चलो मेरा इधर हो गया, आप भी उधर जाओ, ये करो, वो करो, so all that must be the same way. लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं नहीं गायनेक है तो फीमेल बेटर है, but then you are a man in this industry for so many years. आपको कभी ऐसा हुआ? Luckily मुंबई में प्रॉब्लम नहीं है because मुंबई we have I think almost equal numbers of male and female gynec. South we still see when I go to give a lecture, समझो कोचीन या हैदराबाद या कहीं जाता हूँ तो 95% delegates are women gynecs. हाँ. 5 वो ढूंढने पड़ते हैं कि मेल गायनेक कोई है कि नहीं है, राइट? बट बॉम्बे में वी डोंट हैव दैट इशू. वी नेवर हैड दैट इशू फॉर 40-50 इयर्स, नॉट माय टाइम ओनली. उसके पहले भी लाइक वी हैड डॉक्टर पुरंदरे एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑल द बिग नेम्स, ऑल मेन ओनली. सो देयर आर इक्वली बिग फीमेल नेम्स बट देयर आर इक्वली बिग मेल नेम्स इन द गायनेक फील्ड. So in Bombay we don't really have patients who worry about all that. बॉम्बे में नहीं है बट अदर शहरों में तो होता होगा कि कोई डिलीवरी कर रहे हैं, कोई गायनेक है, कोई चेक कर रहे हैं तो वो फीमेल होनी चाहिए. नहीं इतना नहीं है, पहले जैसा नहीं है. पहले जैसा नहीं है. आई वांटेड टू पर्सनली आस्क यू, आप अपने करियर को आप प्रैक्टिस समझते हैं, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ये सब समझते हैं, या आप सोचते हैं ये आपकी लाइफ की कॉलिंग है, मुझे इसलिए ये पढ़ाई, ये जर्नी दिया गया ताकि मैं लोगों को इसमें हेल्प कर सकूं? I think it is life's calling and it was some divine force for sure. How whether come? we believe or not, because my dad was a gynec. Okay. और छोटा सा नर्सिंग होम था जहाँ पे मेरा क्लिनिक अभी भी है.
सो दैट वाज आवर स्मॉल मैटरनिटी होम. और तब मैं गायनेक, फिर मम्मी ने कहा नहीं तुम तो गायनेक ही बनना है ओके. और डिलीवरीज करनी है. तभी तो आईवीएफ का आई भी नहीं था दुनिया में कहीं भी. सो आई गॉट इनटू गायनेक एंड देन आई सॉर्ट ऑफ लाइक्ड इट. बट देन थोड़ा सा एबॉर्शंस करना पड़ता है, डिलीवरीज करनी पड़ती है, तो मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा कि ये मे बी आई मे नॉट बी एबल टू डू दिस, कि एबॉर्शन करने वाली बात मेरे से शायद नहीं हो पाएगी प्राइवेट प्रैक्टिस में. बट प्राइवेट प्रैक्टिस में यू कांट से नो ना. इट इज लीगल, इट इज अलाउड. और अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे एबॉर्शन कराना है तो आई कैन नॉट से नो. सो देयर वाज अ बिग डायलेमा कि हाउ विल आई डू दिस वर्क. तो तभी बहुत डिप्रेशन था. आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर थ्रू आउट, राइट फ्रॉम स्कूल टिल कॉलेज, एमडी, एमएस, ऑल गायनेक एग्जाम्स, एवरीवेयर गोल्ड मेडल. Then I passed out and then I said now what to do. And उसी साल इंडिया की फर्स्ट आईवीएफ बेबी मेरे ही कॉलेज में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर आनंद कुमार ने किया. फर्स्ट आईवीएफ बेबी ऑफ इंडिया. ओके. सो तब मुझे रे ऑफ होप लगा कि नहीं, ये तो नाउ आई वांट टू डू दिस ओनली. This creating life is better than doing regular gynec practice. So that is how then my whole mind went into that. Lot of my best friends said कि अरे इसमें कुछ नहीं है, कोई pregnant नहीं होता है, you will flop, disaster हो जाएगा. I said नहीं, I am young, I will work hard, challenge, we'll take it as a challenge. But this is the future which I want to do, and I think I am born for this. And that is how it started. Oh, just because you didn't want to do abortion, just as a thing you didn't want to do. Oh, how do you keep your feelings now away from if you have to do something that you don't think is right? Now I am only IVF specialist, na. So I have never done gynec practice. I just did for the first 10 years. Okay. Because I had a lot of loans to repay and all that. But then I was very clear that finally it's only going to be IVF and difficult IVF, challenging IVF. That's it. And IVF in the beginning, for example, तब इतना बिकॉज पॉपुलर नहीं था, तब उसमें इतने पैसे भी नहीं होंगे जितने ऑब्वियसली अब आज है. तो हाउ डिड यू नेविगेट दैट कि अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ, अगर मैं कुछ और फील्ड लेता हूँ? नहीं, लकीली पिताजी का नर्सिंग होम था. बिकॉज टू बाय अ प्लेस इन साउथ मुंबई इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टुडे, राइट? सो लकीली दैट बेस वाज देयर. सो उसके बाद तो मुझे सिर्फ आईवीएफ का इक्विपमेंट्स, ये वो सब, जिसके लिए भी लोन लेना पड़ा पूरा. बट देन वी वर्कड हार्ड फॉर 3 and there was a 6-7 year loan which I repaid in 3-4 years. And things went well, and finally see, IVF is success oriented. And it spreads like wildfire. Like that patient I told you who lost her daughter, she must have brought me nothing less than 100 patients in the next 10 years. Because she was very popular socially. She loved to talk. Wherever she goes, she'll be talking, and she had no taboo. You don't have children, come with me to Jatin tomorrow, come on. She'll come with them and bring them to the clinic and get the job done. So all this was then how it took off. So we didn't really have to market in those days and advertise or anything. It was all word of mouth, which is till today it is word of mouth only. Today it is. Yeah, because one pregnant woman means the rest of her life, all her friends, relatives, everybody will be coming to my clinic. So that's how it works, na? Yeah. Even when, for example, when I was researching and all, even years ago, when I was 20 years old, for example, if I'm learning more about this topic, and I would go on Facebook groups or where mothers are discussing or influencers, anywhere you see, कभी भी किसी को IVF के बारे में वो टाइम से भी बात करनी होती थी, तो आपका नाम हमेशा मतलब आपको ना SEO की जरूरत, ना आपको मार्केटिंग की जरूरत, और आप हमेशा you are, if somebody wants this thing, then we are recommending that you go to this person. So I know for it from years when I was like very small also. So I think patient testimonial is the ultimate in life. बाकी कुछ भी कर लो, patients don't move like that. Finally, someone has to tell them. See, you will never go to a specialist from Google, right? No. Suppose you have a heart problem, God forbid. You are not going to find Google पे के कौन stent अच्छा करता है, right? You will ask 2-3 friends, you will ask somewhere, you will ask some relatives, neighbors, and then you will get 2-3 names. Then you will have some ground to find out further. Correct. So that is the most important thing, na? That is why all these marketing tools don't usually work. They may get you a few patients initially, but that's it. And what has been the most difficult part of your IVF journey? Oh, every day is a challenge because every day somebody will be pregnant, somebody will fail. That is most difficult is the failures? Yeah, facing the failures, getting them to again start treatment, making sure that second time around they must succeed. These are the challenges for which we live, na? Otherwise it will become boring. Immune to it, अभी आपको नहीं, फिर तो life बहुत boring हो जाएगी. जैसे आपने कहा life की calling है तो वो तो life time रहेगी ना, till the last day. So that's it's not like नहीं अभी आपको नहीं हो रहा है तो नहीं. Never, अभी अगर वो for example patient बोल रहा है कि अब मतलब give up hope कभी एक बार, I will make sure she doesn't give up hope ना, ऐसे थोड़ी. That is where our counseling efforts are important, na? You have to make sure that the journey ends happily for all couples. Every couple who is with us and has faith and trust in us should end up with a happy ending. Yeah, that is true. That's very important. But सबके लिए होता नहीं होगा. नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं. I told you ना, almost everyone conceives if they stay with us. Means they have to be with us for 1 year. Okay. 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, whatever I tell, this option, that option, they have to be with us.
then everybody has a solution. एंड अगर आपके पास कोई आई एम श्योर यंग लड़की आ रही है कि आई डोंट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मुझे आज बच्चे नहीं कर रहे, तो आप उनको एग फ्रीजिंग का ऑप्शन देते हैं. ओके, कैन यू एक्सप्लेन टू अस लिटिल बिट कि ये एग फ्रीजिंग प्रोसीजर कैसे होता है और क्यों फायदेमंद होता है? Yeah, it's very important because 7-8 साल पहले ये स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअली 10-12 साल पहले स्टार्ट हुआ जब फेसबुक एंड एप्पल यूएस में द मेन कंपनीज started giving $10,000 incentives to all female employees. कि we will pay you $10,000 to get your eggs frozen, but you have to sign a contract कि 40 तक pregnant नहीं होगी, which was very bad in a way. तो it was kind of exploitation to the next level. हाँ. But it started like that, right? Okay. फिर उसके बाद ये पॉपुलराइज होने लगा. फिर 7-8 साल पहले जब इंडिया में पॉपुलर होने लगा, तो इन दैट होल ईयर 8 years ago I did only 4 egg freezings. Okay. आज की तारीख में we do 4 per week. हाँ. That much awareness is there amongst young girls. You can't imagine. 4 per For week. week egg freezings होते हैं आजकल. तो these are women who are married So they and are not now married. coming very young. अब initial 7-8 साल पहले सब आते थे 40, 38, 42. अब उसमें तो कोई चमत्कार हो नहीं सकता, right? Eggs जो है वही मिलेंगे. Now American guidelines have come कि best age for egg freezing is 28 to 32. Okay. So now a lot of these girls, especially actresses, models, you know, those who are sure कि 38, 40 तक तो unlikely that they will get pregnant, they are all coming very young. So they are coming at 27, 28, 26, right age and getting the eggs frozen. Now, if they can do it at that age, that means procedure is quite simple. Okay, so it's not physically very taxing. जो मैंने आपको IVF में भी बताया, because they are also doing the same IVF. हाँ. But here there are no emotions, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर के लिए egg preserve कर रही है. हाँ. तो उसको एक भी इंजेक्शन फील नहीं होता है शायद, राइट? बट नीडल्स आर नीडल्स, तो नीडल्स तो लेनी पड़ेगी. तो सेकंड डे ऑफ पीरियड से इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं. 8 या 10 दिन इंजेक्शन लेने हैं. इन दैट देयर आर 1 or 2 विजिट्स, इंटरनल चेकअप्स होते हैं फॉर सोनोग्राफी टू सी के एग्स कैसे ग्रो हो रहा है. एंड देन दैट 5-minute एनेस्थीसिया वाला प्रोसीजर टू पिक अप द एग्स. फिर उसके 2 घंटे बाद हम लोग उनको बताते हैं कि कितने मैच्योर एग्स, अच्छे वाले एग्स मिले, जिसको M2 कहते हैं, मेटाफेज 2. तो स्टेटिस्टिक्स आर के अगर अंडर 35 है एज, तो अगर 10 एग्स फ्रोजन है तो फ्यूचर में चांस ऑफ प्रेगनेंसी विद IVF है 65%. और अगर 20 एग्स फ्रीज करती है तो फ्यूचर में चांसेस आर 85%. अब समझो अगर कम एग्स मिलते हैं, 2 या 3 मिलते हैं, तो वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड भी कर सकते हैं, और बहुत सारे करते भी है. बिकॉज सम आर वेरी क्लियर इन देयर लाइफ प्लान्स कि मुझे तो 3 बच्चे चाहिए. सो देन वी टेल देम तो पर बच्चा 8 से 10 एग्स चाहिए आपको. So then they are out to gather those 20-25 eggs. Oh my God. So this is how the whole trends are changing. Everybody is becoming very, very aware. You know, but there is another statistic which everyone should be aware that as of today, जितनी लड़कियां ने वर्ल्ड में eggs freeze की है, only 6% have actually used them. Use it. Use them, yeah. Because you know, अभी popular हुआ last 4-5 साल में बहुत सारा. So obviously they are still not maybe married, still finding a partner, settling down. मुझे लग रहा है शायद 2029 के बाद पूरा रश स्टार्ट हो जाएगा उनको यूज करने का. वो एग यूज ही नहीं हुआ है, वो फ्रोजन ही इतने सालों से रखा. प्लस वी फील के शायद 40-50% नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाएंगे. हाँ, बहुत होता भी है. इनफर्टाइल ग्रुप नहीं है. These girls have never tested their fertility, right? So very high chance that like normal people, their eggs are very good quality और naturally शादी के बाद फर्स्ट मंथ में ही प्रेग्नेंट हो जागी शायद. तो आइडियली चेक करा So के जाना चाहिए. 40-50% ना, वो चेकिंग कुछ है नहीं ना. You can check how the quality of your eggs. That when we take out पता चलता है ना. Oh, उससे पहले क्या can't do a मालूम? test to come to know how. No, you can never know you're fertile unless you get pregnant. Oh, मुझे लगा पहले डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि AMH नाम आपके की जो पास टेस्ट है AMH. वो सिर्फ बताता है कि एग्स है बॉडी में, यानी एग रिजर्व कितना है. Oh, they But don't tell quality. intricacies of IVF, because see finally baby depends on husband also ना. उसका sperm भी अच्छा होना चाहिए, uterus भी अच्छा होना चाहिए, so everything is not the egg. Correct. So we hope that 40-45% will conceive naturally. 5-6% have already used, and the remaining 45-50 are still in the planning process, and they will come after 2-3 years. So as of now, these are the statistics. So you have to take it like a car insurance. कि ठीक है, accident हुआ तो use हुआ, नहीं तो ठीक है. It's like an insurance. And many. Or you keep it for a second child, third child. Suppose late आपको करना हो तो. 38-40 पे. And what age group is doing egg freezing? Now it's all 28 to 32 is very common, very, very common. But we have occasional 36, 38, 40. They still come. And if their AMH is low, then we give them a different protocol, more injections, try to get more eggs. Okay. And if AMH is good, then they also give a decent number of eggs. I think ये भी प्रियंका चोपड़ा ने बहुत पॉपुलराइज किया, क्योंकि जब हमने देखा और उन्होंने बहुत ओपनली बात की इस बारे में कि मैंने तो अपने एग्स पहले से ही फ्रीज करे हैं. नाउ शी हैज इट बिकॉज शी न्यू दैट आई विल गेट मैरिड लेट, आई डोंट नो हु आई विल फाइंड. तो उन्होंने पहले से ही अपने एग फ्रीज किया. शी हैज अ हेल्दी बेबी नाउ. अभी जनरल प्रैक्टिशनर्स और गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत पेशेंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कि फ्रीज योर एग्स. सो आई हैव सो मेनी डॉक्टर्स डॉटर्स who are freezing their eggs, doctors daughter-in-laws who are freezing embryos.
Means where suppose the daughter-in-law also is a doctor and she knows that now I have to just struggle and build up my practice and I don't want an interruption with a pregnancy, they are freezing their embryos. So it's become very common now, very, very common. Okay, but one question I have. Do you think any of this, whether it's egg freezing, IVF or anything, is going against the will of what is written for you? No. No. Then तो Egg freezing you don't आप need कर- doctors only. Heart attack आया जाओ, cancer हो गया जाओ, तो फिर तो उसका नहीं, कोई है ही but नहीं. for example, डॉक्टर से गलत क्वेश्चन. नहीं सही बात इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज माय ओपिनियन आई एम सेइंग दैट व्हाट इज द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट आल्सो It's very difficult because society will not leave you alone. You may be the most educated, you may be the most liberated, you may be everything. You go to a party and suddenly one friend will be there who will say, "अरे अभी तक नहीं हुआ." oh Whichever society you move around in, right? So that's not going to go. Means you and your husband may accept it, chalo, we don't have children, we are very happy. There are some couples. I have couples who don't want children ever. अच्छा Okay, but that must be 2 or 3%. हाँ 97-98% at some stage will want. Today they don't want, they'll come back at 40 हाँ or 45. ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कपल्स बोलते हैं मुझे तो हमें बच्चे चाहिए ही बहुत नहीं कॉमन है. फिर बाद में वो नहीं फिर वही सब जो मिलते हैं मुझे सोशली में बोलता हूँ ठीक है नहीं चाहिए आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद दैट बट यू प्लीज फ्रीज योर एग्स एंड एम्ब्रियोस. क्योंकि नेवर नो 10 साल बाद आपको Exactly, mind will चाहिए. change. times will Mind will change. change, yeah. So it's not like being something like just society dependent, but that's the way the world runs, right? So you can't help it. You can't say we are very happy being childless. We are destined to be childless. Then to any disease you just accept and just go. कि we are destined to have a heart attack. चलो 40 में heart attack है नहीं स्टेंट नहीं डालेंगे चले जाएंगे तो नहीं होता है ना ऐसा. भागते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं सब करते हैं. If you had to clear doubts of people and tell them about IVF from your perspective as an IVF doctor who's worked so many years and done so many, what would you like to tell them? No, number one that it's very successful, right? So it should be a first choice for anybody who has struggled for more than 2 or 3 years with different minor treatments. It's not as painful as it used to be in the past. It is your own genetic child, right? No ethical clinic or doctor anywhere in the country is going to mix eggs and sperms without your knowledge. एंड इफ एट ऑल थर्ड पार्टी की जरूरत है तो वो आपके पूरे कंसेंट्स लेंगे. आजकल वीडियो कंसेंट भी लेते हैं, थंब प्रिंट्स लेते हैं, एफिडेविट्स बनते हैं. Okay. सो बहुत सारे इसमें लीगल प्रोसीजर्स है. अब पूरा इंडस्ट्री एकदम रेगुलेटेड है लीगली, सो द पेशेंट इज ऑल्सो सेफ, दैट देयर आर गुड लॉज इन प्लेस. सो गड़बड़ और हैंकी पैंकी ज्यादा होता नहीं है कहीं पे भी, बिकॉज एवरीबडी इज स्कैर्ड नाउ. एक बार लॉ आ जाए तो ऑब्वियसली ऑल एवरीवन विल टेक प्रिकॉशंस टू मेक श्योर कि सब कुछ बाय द बुक होना चाहिए. एंड एटलीस्ट 3 to 5 cycles के लिए you have to be mentally prepared. Okay, clinics are there to help you. I'm sure a lot of clinics will give discounts, packages, whatever to help you through second cycle, third cycle. But अगर एक ही करके छोड़ दोगे तो आपने अपना चांस मिस कर दिया, क्योंकि वो फर्स्ट साइकिल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट नंबर ऑफ एग्स, क्या स्टिमुलेट करना है, की क्वालिटी कैसी थी, क्यों फेल हुआ, अब क्या चेंज कर सकते हैं. अब अगर पेशेंट वो सेकंड चांस नहीं देगा तो वो सारा इन्फॉर्मेशन का क्या होगा. अब समझो नए क्लिनिक में गए 1 साल बाद तो वो पूरा फिर से लर्निंग वहाँ पे होगा, फिर वहाँ पे भी सेकंड नहीं करेगी तो वो भी वेस्ट हो गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूटी अगर करे एक अच्छे क्लिनिक में, जो देन इट इज रियली अ गुड स्टोरी एंड अच्छे से सक्सेस हो जाता है सब. करेक्ट. आई थिंक ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक बार के बाद तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देन व्हाट यू डू विद दैट और इन्फॉर्मेशन. नॉर्मल बच्चे ही आते हैं एज पर फीमेल एज. सो एबनॉर्मल बेबीज भी ऐसा नॉट बिकॉज ऑफ आईवीएफ, और ये प्रूव हो चुका है. सो इसमें कोई और रिसर्च की जरूरत नहीं है. और उसका सिंपल एग्जांपल है, रॉबर्ट एडवर्ड्स वाज द साइंटिस्ट जिसने 1978 में वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ बेबी की, राइट. तो तभी भी पूरा यूरोप उनके खिलाफ गया. लॉट ऑफ थिंग्स वर अगेंस्ट, जैसे एंटी अबॉर्शन, एंटी पिल्स, एंटी कॉन्ट्रासेप्शन, वैसे एंटी आईवीएफ पूरा मूवमेंट चल रहा था. अब किसी को लगेगा कि इतनी बड़ी डिस्कवरी की टू क्रिएट अ लाइफ इन अ लैब, तो नेक्स्ट डे उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था बायोलॉजी का, लेकिन नहीं मिला. बिकॉज ही हैड टू प्रूव कि इससे बच्चे को कोई मॉन्स्टर्स नहीं आ रहे, पैदा नहीं हो रहे, डम रिटार्डेड कुछ, कोई माँ कैंसर से नहीं मर रही है, इसका और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. ही टुक 30 years. उसके बाद 30 साल तक उसने सिर्फ फॉलो अप किया सब लेडीज का जिन्होंने आईवीएफ किया था यूरोप में, till they reach their 80s and 90s. And every year in our main congress he had to prove that there is no side effect of this new technology. 32 साल बाद उनको नोबेल प्राइज मिला when he proved all this. So now इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि how safe IVF is, right? कि अगर इतना, and in the West how particular they are about safety, quality of life, importance of human life, तो वो 32 years लग गए उनको नोबेल प्राइज देते देते when he was 80+. क्योंकि वो इतना टाइम लगाएगा ये पता करने के लिए कि भाई सब ठीक है कि नहीं, कि कोई मास को ओवेरियन कैंसर नहीं हुआ ये इंजेक्शन की वजह से, नीडल्स डालने की वजह से,
All that he had to prove ना. And you would assume that ideally कि हम बच्चे पे टेस्ट करेंगे कि बच्चा सही है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, but it's also so important to test the mother, like you're saying. Mother's safety and child safety. So children were follow ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में 21 साल तक फॉलो अप हुआ चिल्ड्रन का कि स्कूल में पढ़ाई में कैसे, कॉलेज में कैसे, सब कुछ each and every aspect was compared to naturally born children. और वो सेम निकला. 110% same, no difference. My God. So that is the biggest take-home message that everybody needs to get. Most people know it now, but still like आपने जैसे correctly कहा कि काफी जगहों पे अभी भी ऐसे सब myths है, which need to be clarified. मैंने भी गूगल ये किया था कि world's first IVF baby, और फिर वो उसको पढ़ा के वो you know how he is, what he's doing, he she, and then you know what is their life and everything. तो उसको अपने 3 बच्चे naturally born. नेचुरली बोला है. इससे ज्यादा क्या नॉर्मल सी हो सकती है कि जो फर्स्ट बेबी थी, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने अच्छे इंजेक्शन नहीं थे, उसके अपने 3 बच्चे हुए विदाउट आईवीएफ. तो व्हाट डज इट मीन? एंड रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट डेलिकेट सिस्टम इन द बॉडी, यानी वो भी उसका नॉर्मल था. So everything was normal, absolutely. And that also proved it that you can have normal children even if your parents have done IVF. मतलब आपके अगर पेरेंट्स ने किया है जरूरी नहीं. बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे मम्मी डैडी ने अगर किया और हम IVF बेबीज हैं तो फिर हमें वो ही कराना पड़ेगा. लोग सोचते हैं अगर हमारे पेरेंट्स का कुछ भी रॉन्ग था, लो स्पर्म काउंट और व्हाटएवर, तो देन इवन वी विल हैव द सेम. वेरी गुड पॉइंट. तो ये कंसर्न था जब इक्सी आया ना कि बहुत कम स्पर्म काउंट वाले मेन को भी अपना बच्चा हो रहा था. तो बिगेस्ट कंसर्न वी हैड कि शायद उनके बेटों को भी यही प्रॉब्लम होगा. बट इट हैज बीन प्रूव्ड द ऑपोजिट. अभी रिसेंटली स्टडी हुआ 22 बच्चों का, जब वो 21-22 के हो गए तो उनका सीमेन टेस्ट हुआ जिनके फादर्स के स्पर्म काउंट ना के बराबर थे. और जो इक्सी चिल्ड्रन थे 90% of them had normal sperm. 90%. कैसे? हाँ, तो जेनेटिक करेक्शंस होते हैं ना, म्यूटेशन चले जाते आते चले जाते आते. हाँ, तो वो जो हमारा एक ही, हम लोग सब पेशेंट को वार्न भी करते थे जब पूछते थे साइड इफेक्ट. वी यूज्ड टू टेल शायद आपके बच्चे को, लड़के को अगर हुआ तो ये हो सकता है शायद, बिकॉज वी डिडंट नो. टेक्नोलॉजी को आए ही 5-7 साल हुए, तो अब कब वो बड़े होंगे, बड़े नहीं होंगे तब तक सीमेंट टेस्ट होगा नहीं, स्पर्म टेस्ट. अब क्लियर हो गया कि उनके बच्चे भी नॉर्मल है. सो नाउ देयर इज नो इश्यू व्हाटसोएवर. I think I had a great chat and I debunked a lot of myths. Thank you Alina. So much for being here and sharing so much knowledge with me today. It was a great session. Really enjoyed. Thank you so much. I hope you liked my questions. Oh, fantastic. Super. You're the best. Okay, thank you. Thank you guys for watching another episode. I'm sure it was very insightful for me, so it was insightful for you also. I will see you in the next one. Don't forget to subscribe.